मजूमदार थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और दोनों ही बल्लेबाजों ने 50 पूरा किया। ये तो खूबसूरत शॉट, पहले फुल टॉस पे आसान छक्का और फिर ये कवर ड्राइव देखिए बैठ के, और कोई कवर मौजूद नहीं गैप में और इतना तेज आउटफील्ड है कि कोई मौका नहीं किसी को। तो अब ये जो मैच है यहाँ से बहुत ही स्पीड से स्लोप पे आ चुका है अंत होने की तरफ। जी, और इसी ओवर के दौरान हमें पता चला कि क्यों इस खेल को कहा जाता है अनिश्चितताओं का खेल, क्योंकि उसी ओवर में एक बहुत आसान सा डॉली कैच भी ड्रॉप किया था विकेट कीपर मकरंद देशपांडे ने। या जादव के लिए एक विकेट अपने बिल्कुल पहले ओवर में ही हो सकता था। चलते हैं पिच साइड पे जहां पे सुप्रीत तैयार है एक और इंटरव्यू के लिए। Well, all that hooting and cheering I only wish was for me, but that's not true. I'm here with the million star Arya, and that's exactly what's going on. People want to get a glimpse of him on and off the field as well. How has the day been for you so far? It's been good. I mean, it's good cricket all around, and they played really well and put a decent score, 155 something. So I think it's pretty good. Very modest to say decent, but you know, you guys have been stars of today on field. So, do you think there's going to be any room for bettering that performance, or are you feeling you're already there? No, actually, we had a good chance. I mean, they were 35 for 5. It's a pretty bad shape. From that position to come up to 155, I think it's pretty good. I mean, they played really well. And considering you're such a great star here, how do you manage your time between acting and cricket? I think the whole 1 month of CCL, I think it's a good break for everybody. And moreover, you get to meet all the stars from different languages, and they all move as very good friends. And it's a nice union of actors, I would say. I mean, it's fantastic. So there's a lot of camaraderie in the team, but there's no yelling? No, absolutely not. I mean, when you play the game, I think you have that competition. The adrenaline. But off the field, I think they all behave like, I mean, very good actors and very, very, very normal people. I mean, they don't have carried anything beyond the playing field. So There's definitely no acting on field today, is what's happening, isn't it? yeah. What would you say is the biggest strength for your team today? I think we have good bowling lineup as well as good batting lineup. I think as a whole team, we work really well. So I think that's the biggest strength of our team. Arya. Look at that. People going crazy for the team, for Arya here. Chennai Rhinos doing superbly here. So, what are your expectations from the overall game? If we win this game, we are through to the semi-finals. So that's a good thing. So we'll have to focus on semi-finals and finals after this. It's also true that you're coming in from a victory. So, you think we're going to have another one today? Yeah, I think we will win today. I think it should be easy tonight. And with whatever said and done, would you still say that your competitors do have a powerful hand still? Yeah. See, I think all other teams like Telugu Warriors, Kannada, and even Mumbai, they're all playing really well. I think the semi-finals and finals will be a very tough game. Hoping to win. Let's see. Hoping to win, he says. I think he already knows the answer, but just a very modest man here. For now, back to the commentators. शुक्रिया सुप्रीत, बहुत अच्छा एक इंटरव्यू था और उसके साथ साथ बहुत अच्छे बोले भी आर्या, ये कहते हुए कि वी आर ऑल नॉर्मल पीपल बट दिस इज एन अबनॉर्मल परफॉर्मेंस बिकॉज लुक एट दैट कंपैरिजन अतुल, 66 फॉर 5 इन कंपैरिजन 130 फॉर 1। इस वक्त वीर मराठी के इनिंग्स में थोड़ी सी गतिशीलता मिली थी, लेकिन चेन्नई राइनोज बिल्कुल शुरुआत से ही गतिशील तरीके से खेल रहे हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट कमेंटेटर्स कर्स नहीं चाहते हैं, मुझे लगता है कि और जल्दी खत्म कर दें, क्योंकि अगर कहीं बात आए रन रेट पे या एवरेजेस पे तो कहीं टीम कम ना पाई जाए, और ये टीम के लिए खेलना बहुत ज़रूरी होता है। बिग ब्रदर फाउंडेशन के लिए एक रन आ रहा है और अच्छे खासे 3 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे इस मैच के अंत तक। और अगला मैच अभी है और ऐसी पिचेस पे तो हाई स्कोरिंग मैचेस हैं, तो बहुत बढ़िया रन बनेंगे, जितने रन बने सबके लिए अच्छा है और मैच क्लोज हो। मुझे लगता है कि एक तरफा जब मैच हो जाता है ऐसा, थोड़े से हौसले पस्त हो जाते हैं, और क्रिकेट में थोड़ी सी अगर कंपटीशन रहे हर गेम में तो सभी के लिए मजा है, खिलाड़ियों के लिए भी, दर्शकों के लिए भी और हम कमेंटेटर्स के लिए भी। बेशक, और वीर मराठी खासकर पिछले मैच में बिल्कुल आखिरी गेंद पे एक छक्का कंसीड करने के वजह से हारे थे, तो उसके बाद आज का परफॉर्मेंस बहुत ही निराशाजनक रहा है। डॉट बॉल टू एंड 130 फॉर 1।
जाना है प्रेजेंटेशन के लिए भाई। सुप्रीत को देना चाहता हूँ मैं सारे प्राइज। अब जिसका उसका दिल है उसको मर्जी दे दो, मैं तो सारे सारे प्राइज सिर्फ 25 रनों की जरूरत है, 9 ओवर अभी भी बचे हुए हैं और इसी वजह से यहां पे चेन्नई राइनोज बड़ी आसानी से ऐसा लग रहा है कि सेमीफाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर लेंगे। ग्रुप बी में मुंबई हीरोज के भी 4 अंक हैं। यहां पे अगर चेन्नई राइनोज जीत जाए तो सिर्फ वही नहीं, मुंबई हीरोज भी इसके साथ साथ क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल्स के लिए। और चूंकि दोनों के बीच आखिरी मुकाबला रहेगा तो यही देखना पड़ेगा कि टॉप पे कौन निकल सकता है। देखिए ये T20 है, तो अगर अबैंडनमेंट नहीं हो तो मैच में रिजल्ट होना अनिवार्य है, यानी दोनों में से एक टीम 6 अंकों तक पहुंच ही जाएगी। बेहतरीन एक साझेदारी रही है 125 रनों की विष्णु और रमन्ना के बीच, और सिर्फ एक ही चांस उन्होंने ऑफर किया है। कल तेलुगु वॉरियर्स ने भी 10 विकेट से मैच जीता था, तो थोड़े से एक तरफा ये मुकाबला चल रहा है इस वीकेंड। पिछले वीकेंड में जब हम मुंबई में खेले थे और हैदराबाद में, अच्छे खासे टाइट मैचेस हुए थे। जबरदस्त आउटफील्ड है ये, बिल्कुल एकदम जैसे बिलियर्ड सेवल होता है कि बॉल को हल्का सा मारा तो चलती निकल जाएगी, और अगर आप डाइव नहीं करते हैं बाउंड्री पे तो यहाँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। डाइव करना भी एक आर्ट है, सिखाई जाती है बचपन में और क्रिकेटिंग एकेडमीज में आजकल, क्योंकि नेचुरल डाइवर्स नहीं है इंडिया में, क्योंकि मैदान जब आप बचपन में खेलते हैं तो इतने बढ़िया नहीं मिलते, आप घास नहीं मिलती, तो आपको आदत नहीं पड़ती डाइव मारने की, और बाद में डाइव मारना सीखना बहुत मुश्किल है। ओ कमाल का शॉट है, ओवर कवर्स, 6 रन। ये एक शॉट आपको बताएगा कि इस पिच की क्या खासियत है, ऐसी पिच जबरदस्त। जी हाँ, करीब 19 साल पहले एक वर्ल्ड कप का मैच खेला गया था इसी मैदान पे। वहां पे अजय जडेजा ने बहुत जमकर धुनाई की थी पाकिस्तान के गेंदबाजों की। आज कुछ हद तक उसी तरह की बल्लेबाजी की है दोनों, विष्णु और रमन्ना ने। लेकिन वो था अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, ये है XXX एनर्जी ड्रिंक CCL पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज। एक और बेहतरीन करारा करारा शॉट, 72 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ये सेंचुरी से कम नहीं है अतुल। देखिए सेंचुरी की बात नहीं है, टीम स्पोर्ट है, अपने पर्सनल लैंडमार्क ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, पर फिर भी शॉट देखिए कि जो कवर और वहां पे स्वीपर पे खिलाड़ी थे जो अपना 5-10 फुट का रास्ता नहीं कवर कर पाए, इतनी तेज शॉट मारी उन्होंने। ओह अच्छा प्रयास, एक मेहनत कर रहे हैं अभी भी, देखिए बहुत बढ़िया एटीट्यूड, अंत तक छोड़ा नहीं। दोनों खिलाड़ियों में से विष्णु ज्यादा रनिंग भी कर चुके हैं, दूसरी ओर सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल किया है जरूर, लेकिन ये देखिए वैगन व्हील पे आप देख पाएंगे कि कितने सारे रन स्क्वायर ऑफ द विकेट उन्होंने बनाए हैं, यानी कट पे बहुत स्ट्रांग है। 44 रन विकेट के पीछे, और एक बार फिर एक लेट कट का इस्तेमाल, और इसमें भी रोक नहीं पाए। कोशिश जरूर की थी लेकिन पैर से रोकने की कोशिश की थी। रितेश देशमुख बिल्कुल नाखुश, क्योंकि फिर से 4 आसान रन जा चुके हैं। 150 रन इसी के साथ भी पूरे हो चुके हैं चेन्नई राइनोज के, और यहां पे विष्णु is putting on what can be called as a master class. That wasn't unfortunately a master class in fielding. फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में एक परिवर्तन, अतुल वासन की जगह आ चुके हैं अमोल मजुमदार। अमोल, रिजल्ट थोड़ी सी निराशाजनक शायद रहेगी वीर मराठी के लिए, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी चेन्नई राइनोज की। मैं कहूंगा पूरे के पूरे हावी रहे हैं इस मैच में। 12 ओवर के बाद 151 पे 1। What are we doing? Tabriz, you'll have to tell me what are we doing after the game. Studio or break?
151 for 1. Yes, they're chasing 155. 4 रन की जरूरत यहाँ पर. बेहतरीन बल्लेबाजी विष्णु द्वारा. 79 पे बैटिंग कर रहे हैं रमना 53 पे. और दोनों का अगर स्ट्राइक रेट देखें तो 200 के करीब है. इससे साफ जाहिर होता है कि चेन्नई राइनोज पूरे के पूरे हावी रह चुके हैं यहाँ पर. ऐसी बल्लेबाजी बहुत कम बार दिखाई देती है 2020 क्रिकेट में, और वो ही करके दिखाया है यहाँ पर. 12 ओवर में इतने चौके छक्के लगाए, बेहतरीन. देखना ये होगा कि क्या ये दोनों नॉट आउट रहते हैं. एक और बढ़िया प्रदर्शन रनिंग बिटवीन विकेट्स द्वारा. कमाल की रनिंग. इनके दोनों की फिटनेस की भी दाद देनी पड़ेगी. चेन्नई राइनोज अब सारे प्लेयर्स मौजूद वहां पर. पता है उनको अभी जीत दूर नहीं, सिर्फ 2 रन चाहिए. लॉन्ग ऑन की तरफ खेला और 1 रन मिलेगा. रमन्ना जो 53 रन बनाकर नाबाद है. 30 गेंदें खेल चुके हैं. लगभग 200 का उनका स्ट्राइक रेट. 100 Hearts initiative. Donate now at hrudaya.com to save a life. It's a very noble initiative. Chennai Rhinos, they're upbeat, and why not? They've completely dominated this game. Veer Marathi, in the break, they felt they had enough runs on the board, but these two have proved them wrong, completely wrong. And that's it. Finishes it in style. Well, one bounce to the deep mid-wicket fielder. Ramana stays not out on 54. Vishnu stays not out on 82. The Chennai Rhinos, their players are on the ground. They make sure that they've won this game. Have they qualified for the semi-finals? Have they qualified for the semi-finals? They've made sure that they've won this game. The victory jig is on display. And, magnificent scenes here at the Chinnaswamy Stadium here in Bengaluru. And why not? Chennai Rhinos have won this game by 9 wickets. Their supporters are happy. Their support staff are on the ground. Their owners would be really, really pleased about their performance. Ramana stays not out on 54. Vishnu not out on 82. And in that bargain, they have qualified for the semi-finals of this edition of CCL 2015 season. Terrific scenes here. A good warm handshake by Veer Marathi players. They should be proud of themselves. They lost the first game on the very last ball of the match, and now they must be thinking that they've come across 2 very, very good batsmen. Makran Deshpande there. Everybody congratulating these two. They've been the star of the show. This is what happened in the Chennai Rhinos batting. Ramana staying not out on 54. Vikrant got out on 4 of just 3 deliveries. On the very first over he got at LBW. And then the proceedings were with these two, Ramana and Vishnu. Vishnu saying not out on 82 of just 43 deliveries. 155 for 1. And they won this game comfortably. A sorry looking bowling card for Veer Marathi. Lashkaria got his first wicket, conceded 18 runs, but the rest of them, Deshmukh, Chaudhary, Gore, Kelkar, Sanjay, all proving very, very costly. जी हाँ, ये है सूरत हाल मैच का. वीर मराठी
54 रन बनाए उन्होंने 6 विकेट खोकर, और चेन्नई राइनोज ने काफी आसान जीत दर्ज कर ली है। वो जीत गए हैं 9 विकेट से। बेहतरीन सीन्स यहाँ पर चिन्नस्वामी स्टेडियम में। रमना जो विकेट कीपर बैट्समैन है चेन्नई राइनोज के लिए, एक ऑलराउंड प्रदर्शन रह चुका है। यह है पूल बी के स्टैंडिंग्स। चेन्नई राइनोज 2 मैचेस खेल चुके हैं, दोनों जीत दर्ज की है, 4 पॉइंट्स उनको, और उसी के जीत के कारण वो पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल्स में। मुंबई हीरोज ने भी 4 पॉइंट चटका दिए यहाँ पर। केरला स्ट्राइकर्स यहाँ पर 2 मैच खेले और वीर मराठी दोनों मैच हारे हैं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आते हैं ब्रेक के बाद।